कमलकांत जी ने कहा कि ये सब इश्यूज पढ़े हैं, तो डॉक्टर साहब के विषय में मैं पल्लव थोड़ा सा आप बताएं, तो पल्लव आपको ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो इनके मुंह से सुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पल्लव ने आपको देखा है काम करते हुए। Yes. नमस्कार देसाई साहब, numbers don't matter. It is the quality which matters. Absolutely. Okay. In this room, you are seeing collectively the best pictorial minds. So please look at that. Done. With Ragu and Sinasa and Sandeep, Hari, but it's some of the best pictorial minds. जो documentation India का हुआ है और जो दुख और दर्द हमने देखा है वो बहुत कम लोगों ने देखा है इतनी पास से। और कोविड के टाइम पे जो दुख और दर्द देखा है, आई थिंक दैट उसने बहुत ट्रॉमा किया है। और ये भी समझने की बात है, आपने कहा कि लोग देखिए हर कोई आना नहीं चाहता है सामने, कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहता है ऑन बताने के लिए कि कोई मेंटल हेल्थ इशू है, इतना स्टिग्मा होता है। एंड आई कैन से हियर भुज का अर्थक्वेक कवर किया, सुनामी कवर की, कोविड कवर किया, हर चीज इफेक्ट करती है मेंटली। रघु राय साहब थे, नर्मदा वाला एजुकेशन, देखिए कितना बड़ा एजुकेशन था, कितने लोगों को इफेक्ट हुआ, वो सब कहीं कहीं हम लोग के दिमागों में रहता है। बट जस्ट टू दैट इज द फीडबैक, बट Nimesh Bhai, and that's how he is known. I went and filmed inside IHBAS, an interview with him, and I must say, fantastic interview, keeping India mentally fit. We had a team of 6-7 people in the middle of COVID to go and cover it, and he was director of IHBAS. And IHBAS at one time was considered a Chadra mental asylum. And there is a historical ward there, if you go and see, where people were still kept in very ancient conditions. And today, when we film there, it is hats off to Dr. Desai. But he is instrumental in creating for India that removing that stigma from a mental hospital to Institute of Human Behavior. When there's a quantum shift in that, from what is a mental hospital to an Institute of Human Behavior. So one little thing I will relate, when I was there, he let our 3 camera teams go around the hospital freely. You go and film every nook and corner of the hospital. Most hospitals, they don't allow you filming like that, let alone in a mental health hospital. You go and film whatever you feel like. If you find anything, you come and report back to me. That's true. He's also been instrumental in changing policy at the national level. The new mental health policy, the new framework which we see, where it is recognized, a lot of the effort really. We must meet and talk now. I'm Dr. free. Nimesh Desai. He's both trained at All India Institute of Medical Sciences and also worked at the National Institute of Mental Health and Neurosciences and also at Johns Hopkins. Johns Hopkins. So, the cream of the institutions, and we present to you Dr. Desai, and this is an interactive session. So he will speak for a little while and then we can throw up our issues, and he's agreed that he is willing to share his number and email ID also if people want, because we can understand that not many things can be discussed openly and people may want a one-on-one session at a later date with him. He is no longer the director of IHBAS, so fortunately he's been able to give us time, otherwise he is normally very busy. But hats off to him for what he has done for the country on mental health, and that he agreed readily to speak to the journalistic community which has suffered so much. All of us have seen the kind of trauma which the country went through in the last 2 years, and that for us stays in our minds.
तकिए पे सिर रखते हैं तो बहुत चीज़ें आती हैं, कभी अच्छी भी होती हैं, कभी बुरी भी होती हैं। 2 साल में काफ़ी मेमोरीज ऐसी हैं जो कि बहुत दुख देने वाली हैं। तो उसका जो ट्रॉमा है उसको किस तरह से हम बांट सकते हैं। एक अक्सर एग्जाम्पल यूज़ करते हैं कि दिमाग एक प्रेशर कुकर की तरह हो जाता है, अंदर ही अंदर प्रेशर बनता रहता है, और वो अगर रिलीज नहीं हो तो फटता है। एंड दैट्स व्हाट वी सॉ हमारे एक कोलीग की जब सुसाइड हुई थी, विच इज हाउ दिस प्रोग्राम केम आउट एज अ जेनेसिस, एंड आई एम श्योर अदर इंस्टीट्यूशंस कैन टेक इट फॉरवर्ड, बट लेट्स नाउ हियर Dr. Desai, and then we can have an interactive session with him and people can ask. You don't need to say that ये मेरा problem है, it can be your neighbor's problem also. थैंक्स सर। ऐसा करें, ऊपर नहीं बैठना। हाँ, ये कुर्सियाँ नहीं नहीं सर, नहीं दिस इज बेटर ना सर। ये बहस आई थिंक दिस इज बेटर। हाँ सर, सबको कन्वीनियंट लगे सर, सब बढ़िया। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी अनकम्फर्टेबल। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, and everything. Really, I'm thrilled to be here. I'm thrilled to be here more for a dialogue. For a dialogue where, if at all, I can help clarify a few ideas and crystallize ways of handling the psychological issues. That's always a pleasure. But also genuinely, like I'm already learning through the informal discussions since the morning, for me and for us as mental health professionals, to be able to understand from all of you firsthand your experiences. But I promise my humane, scientific, intellectual curiosity on those counts can and will take a back seat. So that may be incidental learning. The primary focus and purpose for today is surely to for us to collectively understand the psychological issues of any such experience that human race has from time to time, and if at all we can see how one can deal with it better than one may have. I don't. Thank you, Dr. Sam. हाँ You सर, are making a lot of sense. Can you come forward? हाँ मतलब ऊपर बैठ के बोलूंगा यार। हाँ, why not? आराम से। करेक्ट सर, प्लीज। नहीं सारी सीटें हमने आगे छोड़ी हुई हैं। चलो 2 मिनट के लिए। भाई फोटो जर्नलिज्म और जर्नलिज्म के बच्चन साहब के बगल में बैठ जाते हैं, है ना? I'll do that, sir. Yes, I'll do that, sir. I'll do that, sir. Thank you. Not worry. नहीं सर है, थैंक्स नॉट थैंक्स। आप बहुत बढ़िया, नहीं थोड़ा तो गले को तर्क कर लीजिए। प्रोफेसर हूँ तो आदत है लंबा बोलने की। आओ सर, लगे साहब और सिन्हा साहब आओ ना प्लीज। सर बच्चन साहब के साथ धर्मेंद्र और अक्षय कुमार भी आ जाए। This is more comfortable I and know, sir. visible. Correct. Okay. Not that Oh, was it? Okay. Right. Not that I want a high platform. नहीं sir, I know. नहीं, I know you too well. I know about you well enough. You're one of the most humble persons. मैं खुद का जिम्मेवार हूँ। मैंने जो किया या दुनिया ने जो किया और मैंने जो पाया, मैं खुद का जिम्मेवार हूँ। Self awareness is a major issue in most of us most of the time. देखिए, हम पैंडेमिक को गालियाँ दे रहे हैं 2 साल से। ऐसे भी लोग मिले हैं
जो आके खबर देते हैं, पता है अब ये आ रहा है, मैंने कोई और अच्छी खबर भी है, क्या ज़रूरत है आपको फैलाने की? अब ओमिक्रॉन आ रहा है, पता है इसके बाद वहाँ से हांगकांग से, अरे आप क्या ढूंढ रहे हैं, ला क्या रहे हैं? आप अपने अंदर तो झांकिए, आप कौन हैं? देखिए कि जो संदीप ने बात कही ना, मेजर क्राइसिस इज द फाइनेंशियल इशू इन एन इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली, दैट ही कैन नॉट रन द फैमिली सेम वे। और जो आपने बहुत खूबसूरत बात कही है वो ये है कि उम्मीदें कम करो, झगड़े भी कम होंगे। तो हम जहाँ बैठे थे, जो बनाया था, वो श्रिंक हो रहा है। अब देखिए सेल्फ अवेयरनेस जो है वो फोटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है, कहते हैं थ्रू यू नो द वर्ल्ड थ्रू योरसेल्फ। व्हेन यू आर अवेयर, योर मिरर इज क्लीन एंड इट रिसीव्स एंड परसीव्स व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। वही सच तो ये है कि पैंडेमिक आया, मारामारी लाया, अखबारें, मैगजीन्स, उनकी सर्कुलेशंस वेंट, they died down like anything, you know. I can quote a figure for the biggest magazine in the country, which is 10 times down now. तो अखबार गए, मैगजीन गए, और फिर जब आप when you were locked down inside your homes, you had to have some alternative. और खबर, अब मेरी बीवी कहती है कि हर वक्त यार तुम चैनल देख सर्फ करते हो, भाई 40 साल अगर न्यूज़पेपर मैगजीन में बिताए तो मैं कैसे नहीं देखूंगा कि देश में दुनिया में क्या हो रहा है। और कुछ चैनल्स तो जो डेडिकेटेड हैं वो भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं। तो देखते देखते जब न्यूज़पेपर बंद हो गए, मैगजीन बंद हो गए, बाहर आना जाना बंद हो गया, तो channels they started feeding you, and they feed you, but they are told to be fed. You know, this is another game that has been played unconsciously. तो वो एक आदत पब्लिक की बिगड़ गई अखबार मैगजीन पढ़ने की, और घर में बंद और डर के मारे उसका अखबार भी आता है, जो कहते बाहर रखो इसको 6 घंटे। अरे जब तक 6 घंटे के बाद आपने अखबार उठाया, सब आपके अंदर तो एनर्जी ठंडी हो गई ना कि ये। तो जो मैं पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ और जो मैंने अक्सर दोस्तों से शेयर किया कि भाई अखबारों का सब कुछ आधा रह गया, मैगजीनों का है। जब वो हुआ है तो वो उसका रिपरकशंस हम पे होना ही होना है, और हमने सब ने बैठ के शायद होना है, और हमने सब ने बैठ के शायद 1.5-2 साल अपने रिजर्व इस्तेमाल किए हैं। पर पैंडेमिक ने एक जो बड़ी कमाल की बात की कि इट ब्रॉट यू टू योरसेल्फ। Yes, sir. That's a big point of awareness that brought you closer to your family. वो बीवी, वो बच्चे, या जिसको तुम डांट के कहते हो चलो उधर बैठ जाओ, अब बेटे तुम्हारे पास कोई और सिचुएशन ही नहीं है, तुम सब यहीं बैठोगे एंड यू विल फेस ईच अदर, यू गॉट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और कितनी शादियां टूट गई क्योंकि जो बाहर हमें रिलीफ मिलते थे ऑल काइंड्स, वो अब नहीं मिल रहे हैं। तो दिस हैज बीन अ ग्रेटेस्ट situation of self-realization and self-awareness कि जब सारी दुनिया ही नीचे आ गई। दूसरी बात ये है कि human mind is such a lazy thing, जो excuses और explorations का कोई अंत ही नहीं इस दुनिया में। आप अपने लिए जितने मर्जी excuses चाहो भर सकते हो अपनी कहानी सुना के, पर on the other side, if you are an explorer of situations of daily life, उसका भी कोई अंत नहीं है। और जिंदगी के साथ दर्शन जो होते हैं वो इन्हीं बातों से होते हैं that you are aware of what's going on around you under these bloody circumstances. फोटोग्राफी में अब देखिए कि जिनके पास जॉब है, इवन
राइटर्स वो ऐसे सेटल हुए पड़े हैं उस गद्दी पे, वो गद्दी तो पैंडेमिक ने हिला दिया सबकी, कि भाई आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो कि आप इससे बंधे हुए हो और आपका चारा आएगा और आप चारा खाएंगे. This is the major crisis in the society, because most of us, most of the time, we are programmed human machines. And this is one of the big psychological reasons. कि यार मैं सारा दिन तस्वीर खींचा, कुछ अच्छी बनी नहीं. क्यों बनेगी भाई? You are a programmed machine, you've gone with an idea. लोग कहते हैं अच्छा रघु राय, जब तुमने ये अच्छी तस्वीर खींची थी तो तुम्हारे अंदर क्या आइडिया था? मैंने कहा मेरे पास तो आइडिया होती ही नहीं है. मैंने कहा मुझे तो नेचर या लाइफ देती है, जो वो ऑफर करती है मैं लेता हूँ. तो जब मैं वो लेता हूँ तो मैं ये भी जो मुझे जिंदगी ऑफर कर रही मुझे लेना पड़ेगा, और मैं अकेला नहीं हूँ. हम सारे के सारे, the whole, not even Delhi, not even India, the whole world is down into those dumps where you have to rise again with new awareness. क्यों? उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है. तो मैंने जो फोटोग्राफी में सीखा, जिसका मुझे आज भी फायदा है, कि when I am going to go to a specific situation for a specific story, on the way, say I have landed in Bombay, then I have to drive 4 hours to reach the spot. The moment I leave the house, get into the flight, get down and take the car, I am constantly shooting. And in fact, I'll tell you a little later, I constantly shoot. The advantage is very simple, that my mind's eyes are searching. I am not dumped into myself in the pressures that are being caused by nature or by the society or by my neighbors. तो मैं, मेरी बीवी जब मुझसे गुस्सा मैं कभी कर लेता हूँ, कहती pick up your camera, go shoot. You know, You'll be better. that's the biggest release I have. And I tell you, after almost 2 years, I went for 12 continuous days and came back day before yesterday, and very happy man, little physically tired, but very alert, very alive. तो बात ये हुई पड़ी है कि हम जो जहाँ हैं, जो हमें मिल रहा था, वो क्यों नहीं मिलता? That's it. और जो इन्होंने कहा कि उम्मीदें कम करो तो सदमे भी कम होंगे, और ये बापू जो हमारे थे, सच्चे बापू थे, उनकी अटरेंसेस में इतनी सिंपलिसिटी और ऑनेस्टी थी. और बात तो वही है, मेरा बेटा कहता पापा यू आर सच अ फेमस फोटोग्राफर, you should be going around in a Mercedes. I said, damn it. Why? I said, if I have that kind of money, you know, my farm is about 25 kilometers from here, where those ordinary poor people live. और मैं देखता हूँ उनको, वो हर शाम को जाते हैं अपनी राशन खरीदने हैं, और वो आलू की सब्जी, आलू ले आते हैं साथ, आटा ले आते हैं, थोड़ा तेल ले आते हैं और नमक मिर्च, और रोज़ खाना बनाते हैं. मैंने कहा मैं उनके लिए वहाँ पे एक ऐसा मिनी हॉस्पिटल नहीं खोल दूँगा. मुझे मर्सिडीज, हिंदुस्तान के क्राइसिस यही हैं. We are to ourselves and we build our own empires, and now those empires are getting shattered, especially with our kind of people. And they are shattered. Man, you got to rise again, all over again, with new awareness. And new awareness, camera. When I look through the camera, I am alert, I am awake all over again, and I am exploring, and I come to life, to myself, for myself, and I am awake again. तो क्राइसिस जो हैं वो जहाँ पड़े हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं. अब साइकेट्रिस्ट कसम से, this is not now, but I have always wondered why people look for a psychiatrist, because they've lost self-awareness, simply as that. और उस वजह से now, because of the pandemic, the pressure is
unbelievable, multiplied, and all kinds of, everybody is also telling you stories about pandemic as if there is nothing else to share. तो जो हम थे वहाँ से तो हम हिला दिए गए, पर जो हालात हैं, जो दुनिया है, we have to move away from our fixed position and begin to rethink, re-explore and learn ourselves where to go now. That is the first way of de-stressing yourself. And when you begin to explore and begin to look at the world all over again, your mental problems disappear for those moments. And you come back to life. So this is what is happening with most people के यार हम तो जहाँ सेटल हुए थे हमारी गद्दी छिन गई है, और गद्दी वाले लोग जो हैं वो देखिए पॉलिटिक्स में भी उनको तकलीफ होती है और देश को तोड़ मोड़ के उल्टा रिवर्स करके नई कहानियाँ सुना के घास बेच रहे हैं और लोग खा भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि वी आर नॉट दोज पीपल, वी आर जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट who's looking for the truth of a situation and not the dictates of your editor or your political bosses whom you would like to please. A criminality तो हम में भी आ गई है ना. We are not the same honest journalist. It's a criminality कि जब जज ही faithful हो जाएगा, जब spiritual guru ही जय जयकार करने लगेंगी सरकार की, तो किसका धर्म बाकी बचा है? हमारा भी धर्म ही लिख चुका है सबका। तो बात तो अपने धर्म को जानने की है। मुझसे मेरा धर्म तो फोटोग्राफी है, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी ने ही दर्शन दिए है जिंदगी के, इंसानों के, और ये मुझे जिंदा रखता है। कसम से मैं कह रहा हूँ, मैं 80 साल का हूँ और जब कैमरा हाथ में लेके निकलता हूँ, आई एम लाइक अ मैड मैन, दीवाना मस्ताना जिसको कुछ हो ही नहीं दुनिया में। एंड आई परसीव एंड रिसीव एंड आई टेक पिक्चर्स एंड आई एम सो आनंदित कि वाह। और इन दिनों भी मैंने ये बात दूसरी है कि मेरे घर वालों ने मुझे कई महीनों तक निकलने नहीं दिया कि तू 79 है और तू पागलों की तरह जाएगा। मेरी बेटियां जो हैं जो छोटी वाली, वो तो पापा के साथ चिपक के रोने लगती हैं कि पापा यू कांट गो। मैंने कहा यो पापा, इनफैक्ट कि हम वी हैव टू बी लार्जर देन लाइफ इन ऑर्डर टू गेट आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड यार। और बात तो वही आ गई कि मरिए तो मर जाइए, छूट जाए झंडा यार। मतलब कसम से क्या रखा है उसके बाद, नॉट दैट यू वांट टू डाई, but if it comes, you can't stop it. And all my friends, my family put together can't make a damn difference to that situation. But be an explorer, learn to change your position, learn to rise again, learn to wake up again to the realities to all around you, because the whole world is under such a stress and loss, and economic stress is same for everybody. तो जब सारों की ये हालत है, वो तो आपको दिलासा दे सकती है ना कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी जब उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्निंग्स इतनी डाउन होगी, अनलेस यू आर बढ़िया रो रहा है बैठा है कि भाई क्या हुआ, कहता है यार बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा कितने का? कहता 50 करोड़ का। मैंने कहा कैसे? कहता पिछली बार मुझे 150 करोड़ का फायदा हुआ था, इस दफे 100 करोड़ का फायदा हुआ। समझ गया था। Please, for God's sake, जो कमाया नहीं वो नुकसान है। वो नुकसान राइट। For God's sake, yeah, we rise for ourselves. We come to a new awakening under these circumstances. And I have other ideas also for photography. If नहीं, बट बहुत सही कह रहे हैं। which we talk later. Yeah. मैं एक चीज़ कहूँगा, रघु राय जी ने बात कही, अब सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस जो मैंने नहीं शायद मेंशन किया था लफ्ज़ों में, वो प्लीज़ रजिस्टर करें। आई थिंक बहुत सही है। मेरा जो खुद के लिए लर्निंग है और मानव जाति के लिए जो थोड़ी क्रिस्टलाइजेशन है, वो यही है कि जो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने का मौका अभी है, उसमें से ये 2 चीज़ है, सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रियलिटी। जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा।
lot of us have recorded some of the most traumatic experiences. Hospitals, cremation grounds, burials. Immediate family also going under so much stress. सर वो इमेज वापस आती है, उसका क्या करें? उसको कैसे डील करें हम? वो हमारे दिमाग में रहती हैं, रात में आती हैं, दिखती हैं. प्लीज सर, थोड़ा बताएं फिर मैं बताता हूँ. प्लीज. नहीं सर. It comes to self-awareness, total self-awareness, selflessness. देखिए वो 84 भोपाल गैस ट्रेजेडी, burial of an unknown child. Mr. Rai, you must have been traumatized. What did you feel? Sorry, I didn't feel anything except the reality in front of me, which is to be captured the way it is to be shared with the rest of the world. अगर मैं ही victim बन जाऊं, तो मैं दूसरों को दर्शन क्या दे सकता हूं reality की? ये जो to carry this pain and suffering that we've gone through, we've seen. देखिए कई दफे अब इतनी उम्र हो गई, पुराने दोस्त मिलते हैं, अरे रघु याद है हम ये क्या करते थे, हम वो क्या करते थे. मैंने कहा कुछ याद नहीं. पूछते हैं रघु राय तुमने 40-35 साल फिल्म यूज की, डोंट यू फील द लॉस ऑफ इट? आई सेड आई डोंट बिलीव इन नॉस्टैल्जिक नॉनसेंस, गुड और बैड. देखो एक सिंपल सी फिलॉसफी बुद्धिज्म जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था और साउथ एशिया में और इवन चाइना में और कहाँ कहाँ नहीं गया, उसकी एक फिलॉसफी थी बीइंग हियर एंड नाउ. एंड दैट is a mool mantra for anyone to stay awake, alert and responsible and not get bogged down by the images that you see. इसका एक नुक्ता बताऊं सर, इसका एक नुक्ता, माफ़ी चाहता हूँ, इसका एक नुक्ता ये है और मैं न सिर्फ आपसे लेकिन राष्ट्रपिता से भी गुस्ताखी करने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे विचार स्कूल से है एंड विद अपॉलॉजीज टू यू एंड द फादर ऑफ द नेशन. what you are capable of, and I commend that. Detachment, virakti ki bhavna, self-awareness, do your job and leave it there. Not everyone may be capable of. And what we are talking about is those who are not capable of doing so. Third group, those who might be very vulnerable. मैं फादर ऑफ द नेशन को इसलिए रहा हूँ एंड रियली विद द फुलेस्ट रिस्पेक्ट. सी व्हेन गांधी जी एडवोकेटेड सेलिबसी एज ए फैमिली प्लानिंग मेथड, दैट वाज द फ्लॉ. आप रघु राय सर समझें, आपके लिए जो संभव है ना, आप जो बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हो, वो एक हर एक साथी के लिए संभव ना हो. नहीं, पर सच तो ये है कि मूल मंत्र तो जीने का वही है, जागने बेटर का, है, पढ़ने का, खुद को और फैमिली को और दोस्तों को साथ लेके चलने का. और कोई मूल मंत्र है ही नहीं. माफ कीजिए, नहीं, कोशिश वही होना चाहिए. बिल्कुल देखिए, मुझे भी किसी ने दी नहीं. हाँ, आपने खुद देखिए, आई गेट दैट. और हमारी जो नई जनरेशन है, व्हेन आई गिव अ टॉक टू यंग फोटोग्राफर्स, ऐसे मैंने कहा नेचर, आप जाते हैं, मैं जाता हूँ, मेरे पास कैमरा है, आपके पास कैमरा है, और मुझे नेचर दिखाती है, कहती ये है. मैं कहता हूँ हाँ अच्छा है, पर मैंने पहले देखा यार, ठीक है. फिर वो कहती ये ले ले. मैं कहता ठीक है, इतनी बड़ी बात. कहती ये ले ले. मैं कहता हूँ मैं ले लेता हूँ. तो मैं उससे चैलेंज कर रहा हूँ और आई एम गेटिंग चैलेंज माई सेल्फ. आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट. फिर मैं वो लेता हूँ. मैंने कहा तुम बच्चे लोग देखते हो एक चीज़, नेचर तुम्हें कहती है देखो, तुम लेके वो खुश होके घर वापस आ जाते हो. मेरे बाप के पास वो इतना अमीर है, सबके लिए खजाने हैं, तुम इतने में खुश होके आ गए तो तुम्हारा इतना हिस्सा है. तो देखिए, जो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इंसान की का गहना है, वो इंसान की शान. नो डाउट अबाउट इट. उसके बिना अब ना हो. और क्योंकि आप लेजीली जीते गए हैं, पढ़ते गए हैं, मरते गए हैं, उठते गए हैं, जागते गए हैं, now the time has come, pandemic says no more of this nonsense, wake up. That is absolutely agreed. नुक्ता सिर्फ, हाँ सर आप बताएंगे प्लीज सर. डॉक्टर साहब, उसके लिए क्या उपाय है? जो लोग सर वो शुरू कर दी जाए,
Fortunately, I said, look, let's wait for 4-6 हफ्ता 6-8 हफ्ता वेट कर लेते हैं. Let's not start the anti-obsessional medication. We didn't. Majority of them overcame that. So जो natural coping है ना, वो mostly work करती है, except for those people who might need help. मैं पल्लव जी से एक बार शेयर किया. Allow me to share this one data set. गुजरात में अर्थक्वेक के बाद we followed up 35,000 population for 8 to 9 years. No PTSD. No PTSD. तो PTSD का सर बहुत ज़्यादा हवा मच गया है अमेरिकन साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट के कारण. यू नो, उनके संदर्भ में जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ मेडिकल कॉन्सेप्ट बट इट्स मच मोर ऑफ अ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. यू नो, तो PTSD रेयरली अगर होता भी है. एक दूसरा मुद्दा, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में वी डू सी रेयर PTSD. Like everything else, the course and outcome of PTSD in India is much better. So please don't confuse a small ligament tear to be a major fracture. मैं एग्जाम्पल वही दे सकता हूँ कि जो आपने बताया ना सर, what you raise, कि भाई आपने जाके देखा. See, बार बार कहें, रघु राय जी must have been शुरू से, and he has perhaps evolved, you know, over the years to be able to be detached and see it as, you know, experience. मैं एक बात कैसे हुआ सर? हाँ, कि आपने हम पे जुल्म ढाया क्या? हाँ, कि आपने मेरी बातों को फिलॉसफी कह दिया. नहीं, कतई नहीं. देखिए, हाँ, देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. मैंने जो भी सीखा है कैमरे के थ्रू सीखा, correct. और जिया. और मेरा जो जीना है, मैं कोई अद्भुत सिचुएशंस में नहीं जिया हूँ. इनके साथ या श्योर, इनके सीनियर्स के साथ भी लड़ा हूँ. हाँ, ऑफिस में एडिटर्स के साथ भी लड़ा हूँ. ओके. हैं, और मैंने जो सीखा है वो रोजमर्रा की जिंदगी जी के सीखा है. ग्रांटेड, टोटली एग्रीड. You don't call it philosophy, please. सर मैं इज्जत दे रहा हूँ. नहीं, ऐसी बात अच्छा, तो एक बात भी है, एक बात भी है. पर वो मेरे भाई साहब जो बैठे हैं, विनय जी हमारे perpetrator is the ruler. You got nothing to say about it. You got no choice. You better bear it. I'm telling you, my friend. सर वैसे राय साहब एक बात कह दूं, most good philosophers do not realize that they're giving good philosophy. ये भी सोचिए सर. आप नहीं, सच में मैं बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ, सच में. सर प्लीज सर प्लीज. सर नहीं, जस्ट टॉयलेट ब्रेक किया. ये अभी तक नहीं है एविडेंस. एविडेंस अगर है तो दूसरी तरफ है कि जो वनरेबल थे, जो पहले इलाज करवा चुके थे, या जो इलाज के लायक थे लेकिन इलाज के लिए नहीं आगे आए थे, हमें ऐसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस स्ट्राइक बहुत करता है. सी, डॉक्टर कम्युनिटी भी वैसी बातें हुई जो आप कह रहे हो. यू नो, भाई वो जूनियर रेसिडेंट इतने गुजर गए, इतनों ने सुसाइड कर लिया. This is what I would call, Pallavi, you are so familiar with the science issues, this is artifactual. It creates an impression कि बहुत सारे लोगों को हो गया. It was undetected or hidden. तो होगा क्या, ये important इसलिए है कि जब हम ये बातें करते हैं, जो बाकी जो लोग हैं उन पे भी असर होता है. जैसे आपकी पीड़ा में ऑलरेडी देख रहा हूँ, स्पेशली इन योर ऑफिशियल पोजीशन, यू नो, यू माइट इवन फील रिस्पॉन्सिबल कि यार हमने इनके लिए कुछ करना चाहिए था, क्या हमने नहीं किया. बट दिस वाज पॉसिबली, मैं ये कह रहा था सर कि अक्सर ये हुआ, डिप्रेशन और सुसाइड जो इस पीरियड में हुआ है ना, दिस वेर केसेज हु वर अनआइडेंटिफाइड, अनडिटेक्टेड, हु केम फोर्थ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. दे वर नॉट नेसेसरली ऑल कॉज्ड बाय द ट्रॉमा. यू नो, तो सर प्लीज. ऑन कर लो. आई थिंक निमिष भाई, नहीं, थोड़ा फास्ट करिए. हाँ, एक जो इशू आया था वो पैंडेमिक का बड़ा यूनिक डिजास्टर सिचुएशन का था. सी, हम लोग डिजास्टर कवर करने जाते हैं, अर्थक्वेक किया, सुनामी किया कवर. उसमें हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल क्लैश नहीं होता है. जब हम पैंडेमिक कवर कर रहे थे, घर वाले कहते हैं, जैसे रघु राय ने कहा कि मत जाओ, घर वाले कहते हैं नहीं जाओ, लेकिन एक तरफ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का दायित्व बनता है, जैसे रघु राय ने कहा
84 में इमेज देना था तो देना है। तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं या जो ट्रॉमा की कंडीशन है पीपीई किट में लोगों की, वो हमने डॉक्यूमेंट की। लेकिन जब सुनामी और अर्थक्वेक करते हैं तब हम वो घर में नहीं लाते। यहाँ तो वो वायरस हमारे साथ वापस आ रहा था। वो एक जो प्रोफेशनल और पर्सनल एक अंतर्द्वंद था, उसने बहुत माने काफी हद तक तोड़ लिया है। जैसे रघु राय साहब ने खुद बताया, अपना बेटी ने लिपट के रोने में, वो घर में हमने भी फेस किया, आपने भी किया होगा। जब कवर करने जाओ तो एक बार घर के अंदर जब घुसते थे तो लगता था जाए कि ना जाए। लेके आ गया वाला। ऐसे भी दोस्त हुए जिनको तो इसको कैसे डील करें? घर में खाना जो है उसको कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर उसके खाने की प्लेट रख देते थे और वो उठा लेता था। ऐसा भी हुआ है। और ये बात तो आपकी बड़ी वो है कि ससुरा घर में चला आया, और इसी डर से मैं तो कहता हूँ आई हैव ऑलमोस्ट मिस्ड इट। और मुझे फिर भी 2 दफ़े हो गया कोरोना। ओके। और मैं दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, सच अ बिगेस्ट न्यूज़ स्टोरी which has been ongoing affair of this pandemic nonsense, जिसका मेरे पास कोई लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं है। और मुझे इस बात की शर्म है। जो भी हुआ मैं अलग रहा, थोड़ा थोड़ा चुपके से मैंने किया है। और ये पल्लव जो हैं ये रेगुलर थे। ऐसे लोग तो जिन्होंने परवाह नहीं की है, और घर वाले भी इनको कैसे घुसने देते, पापी है साला। लेकिन मुझे लगता है समाज को और सरकार को, समाज को यकीनन मुझे तो है, समाज को है, ये जो 3 ग्रुप में बार बार गिनवा रहा हूँ ना, हेल्थ वर्क। मैंने सच लिखा, लेकिन पॉलिटिशियन को समझ नहीं आया। समझ तो आया, अच्छा नहीं, उसको मतलब वो रास नहीं आया ना। रास नहीं आया। किसी के भी प्रेस क्लब के अगेंस्ट अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लखेड़ा जी को थोड़ा सा बुरा लगेगा। वो कहेंगे भाई, दूसरे लोग बोलेंगे भाई क्यों किया, वो आपको सस्पेंड कर देंगे, निकाल देंगे। वैसी चीज ऑफिस के अंदर है, तो आदमी इसमें करे क्या? सच की बात आती है। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू से मैंने कहा कि आप सच को बड़ा बोलते हैं कि सच से बड़ा कुछ नहीं होता। माफ कीजिएगा, इस बात का तो डॉक्टर साहब के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। करेक्ट सर, तो बताइए। करेक्ट नहीं है, एक ही है, प्रैग्मेटिज्म। अगर ये पोस्ट पे होते, रिटायर नहीं हुए होते तो शायद दिक्कत होती, लेकिन आप ये बोल सकते हैं। नहीं सर, तब भी ऐसे ही था। और फिर गुजरात से हैं ये। मेरे पास नहीं, बट नो, नहीं, मैं आपके IHBAS के पास सर, ही रहता हूं। सर। और मैं एक बार आपके साथ बैठ के, जब आप जॉब में भी थे, 1 घंटा मेरी बातचीत हुई थी। सचिन तेंदुलकर जब अपना 100th सेंचुरी, मुझे लग रहा है कि हमारी बात हो चुकी है। काफी देर आपने 1-1.5 घंटा उस पर बताया, राइट, कि कैसे औरतें सुई धागा डाल लेती हैं, लेकिन हाँ, वो एक चांद की रोशनी में एक त्योहार होता है, करेक्ट सर, उनको दिक्कत आती है डालने, करेक्ट, जो कंपटीशन होता है, करेक्ट सर, कंपटीशन का जो प्रेशर होता है। तो हमें मीडिया के लोगों को एक बड़ा प्रेशर ये है, एक तो सच चीजें सामने लाने का, दूसरा एक डर जो है हर चीज में। पहले क्या होता था कि अगर हमने कोई गलती करी या हमारे किसी रिपोर्ट पे एडिटर को फोन आ गया, तो एडिटर बोलता था यार देखो थोड़ा सा बचा। आज एडिटर कहता है कि ये अगर ऐसी चीज दोबारा कर दी तो भाई नौकरी से निकाल दिए जाओगे। सीधा मतलब आजकल ये मैसेज आता है, पहले निकाल दिया जाए और निकाल भी दिया जाता है। ये नहीं है कि वो वैसी वाली बात कहने की। और एक सच की बात है कि जैसा आपने कहा कि सच पढ़ते आए हैं बचपन से कि सच बोलो, सब कुछ बड़े लोगों ने भी कहा, घर वालों ने भी कहा, सब कहा। तो एक दिन मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा था, आप कहते हो भाई सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता। सर प्लीज, ऑफ कोर्स, ग्रेट। कुछ लोग, हाँ हेलो, हाँ, कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग खामोश हैं और सोच रहे हैं कि सच बोलेंगे जब सच के कुछ दाम बढ़ेंगे। तो भाई साहब, बहुत बढ़िया, करेक्ट सर। ये एक देश है जो आज की दुनिया का, दूसरा मर मिटे थे वो वतन पे, मर मिटे थे वो वतन पे, ये मिटा देंगे वतन। ये बातें जो हैं, जो शायरी में आती हैं कभी कभी, उनमें इटर्नल ट्रूथ आता है।
जो शायद हम डिटेल में नहीं बोल पाते और शायद 2 लाइनों में कह के घर वापस चला जाता है और बीवी से पिटता है और फिलोसॉफिकल बातें कह देता है। बट एक चीज़ और कहूँ, सॉरी सर, 1 मिनट, सॉरी, लेट मी कंप्लीट। जो मैं इनको कंप्लीट कर लूँ, जो इनका जवाब, सॉरी रघु राय साहब ने जो बात कही बहुत सही गई शहरों में। सर ऐसा है, मुझे विचार आया, अगेन पता नहीं क्यों आज गांधी जी का संदर्भ ज़्यादा आ रहा है, बट नीडर है। गांधी जी की सत्य की फिलॉसफी शायद अनादिकाल तक रहेगी, बाकी जो कुछ भी नुक्ते चुने जाएं, लेकिन गांधी जी विल बी इक्वेटेड विद द आइडिया ऑफ ट्रूथ। एंड यट इफ आई मे से, इफ एवर देयर वाज अ प्रैग्मेटिस्ट, इट वाज गांधी जी। तो सत्य और यथार्थ, ट्रूथ एंड प्रैग्मेटिज्म, एटलीस्ट दैट वन पर्सन कंबाइंड ब्यूटीफुली, अगर हम गौर करें। सबसे आखिरी मेरा मुद्दा, आपने जो सवाल पूछा सर, हर चीज़ में इंक्लूडिंग जो भाई साहब ने बात की, मेरे लिए सामाजिक रूप से मेंटल हेल्थ में जो सबसे महत्व लगता है, जो हम स्कूल में ऐसे लिखते थे और हम सब स्कूल की लर्निंग को ना गाली दे के भूल जाते हैं। मुझे इसका सच में बड़ा मलाल है। जैसा भी हमारा एजुकेशन सिस्टम था मकौले के कारण या वॉट एवर एल्स, देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल याद करें, हम सबके लिखवाया जाता था कंपल्सरीली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में विश्लेषण करें। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जीवन का हर एक मसला कॉन्टेक्सचुअल है। आपकी मेरी लाइफ में, इनकी करियर में एडिटर से झगड़ा हुआ, भाई मेरे जीवन की क्या स्थिति है, मेरी क्या करियर पोजीशन है, मेरी क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, उस एडिटर से मेरी कितना रिश्ता है, वो पावरफुल है या नहीं है, ये सारा संदर्भ तो होना ही पड़ेगा ना सर। ऑलमोस्ट नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो हर एक चीज़ जो आप और ये भाई साहब दोनों जो अपनी प्रोफेशन रिलेटेड एंग्विश शेयर कर रहे हैं, उसमें there can only be one choice made, and second in the context, है सर? ये भी कहा जा सकता है कि ये भी गुजर जाएगा। वो देश टू शैल पास, पक्की बात है सर। और देश We have in our midst Ajmal Jami. Ajmal is a veteran videographer. He saw Kargil more closer than anybody else did. Seen the tsunami. But I think he's very shy. He doesn't speak. He's been my camera person on so many stories. He uplifts any story I have done from ground X to ground 10X. But what is his coping mechanism? And people should know he survived a helicopter crash in which Badmash? Not Kingfisher का मालिक, who Malia deserted him. अब बताओ तो सही, how did you cope with stress? ये तुम इतने शायर हो तो कैसे चलेगा? शायर में थोड़ा सा सर आ जाइए ना। I have to try it. हाँ, कारगिल में दराज की शाम भी बताना कैसे बचे। आगे आ जाओ थोड़ा सा, जामी और आगे फ्रेम में आ जाओ। हाँ सर, फ्रेम में। अच्छा, ये एक्चुअली मैं क्या नकार खाने के आगे तूती बोलूँगा। नहीं सर, पास लेके थोड़ा। सी द होल पॉइंट इज, और ये चीज़ अक्सर हाँ यहाँ आ जाए और माइक्रोफोन आ जाए। there are a lot of younger members here, and I think a lot of people go through this. I'm obscuring you. अक्सर everybody is pitchforked into situations for which there is no psychological preparedness internally. सभी के साथ हुआ है, हम सब के साथ हुआ है, we've all been into that. कि institutional awareness तो कोई zero, I think that still continues. None, I'm not sure if there are any news organizations which even recognize that, even remotely, even now. It could range from anything as simple as sending a team to Ladakh and not even recognizing that there would be oxidative stress and you could land up in a hospital, possibly even die, but there's a pressure to perform. Many people do, many people cannot. Pitchforked into scenes of extreme violence,
अब वहाँ पे आप जिन चीज़ों को देखते हैं, you bear witness to that. You try and cope with it internally to the best that you can. आप सबके अंदर, हम सबके अंदर MCB हैं, internals, जो trip off कर जाते हैं. Maybe they are of different ratings. Maybe some people are. That is called awareness. I know. वही सर. लेकिन ठीक है, you see, this is a great alienation device. We function, but we function with a screen in front of us. So we essentially we are escape artists. हम लोग हैं उसमें और नहीं भी. तो वो चीज़ तो खैर है. And especially for the younger members here, I mean, you would probably throw some light on how to go into these situations. Everyone here has been through this. Maybe we've all worked our own mechanisms of how to cope with this. But since this is being taped, we'll probably go to a lot of people who are not here. So, what is it? You know, what can you cultivate? What is the framework with which you can go into a certain situation, come back with minimal scars? Tsunami की आपने बात की, भूज की बात की. I mean, you know, we all have our images. I mean, there's an image of a man who was scrabbling through Ahmedabad. There was an earthquake which toppled the school building. अब उसके जो अंदर, I still remember a man. His fingernails were torn, and he's bleeding, and he's scrabbling through the debris, trying to pull out some kids. Yeah. So, you know, those things like this, those images stay within you. These are little nicks, say to say, on the post. अब वो रहती हैं, अब उसके ऊपर हम खोल चढ़ा लें, ठीक है. और अक्सर ये चीज़ होती है कि एक इंसिडेंट है, खोल चढ़ गया, एक और इंसिडेंट है, खोल चढ़ गया. अब ये सब हमारे अंदरूनी पिटारे के अंदर घुसता जाता है. लेकिन क्या ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं कुछ इंडिविजुअल्स में कि वो सारा खोल जो है वो डिसॉल्व कर जाता है, एंड ऑल दीज थिंग्स, यू नो, मर्ज, कोलेज टुगेदर. बिल्कुल. व्हाट हैपेंस देन? एंड उस चीज़ का इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस ज़ीरो. अगेन आई से मेनी ऑफ अस वी हैव कम बैक इंटरनली शैटर्ड. तो हम लोग अंदर से कीमा बना देते हैं. लेकिन आप लोग आते हैं और वापस आते हैं और फिर वापस जाते भी हैं और जाते भी हैं. ठीक है. अभी यू मेंशन्ड अ क्रैश. आई थिंक उसके 6 महीने के बाद आई टू गो ऑन अ हेलीकॉप्टर अगेन. इन द फर्स्ट वन, lucky to be here to be speaking. Helicopter broke in 4 parts. It didn't catch fire. Miracle. I have a rod here. So functional. ये तो चलता है. इसमें ज़रा दिक्कत है. But anyway, that's another story. So I had butterflies, as you know, as would happen. But ठीक है. I ducked behind the camera and I worked. वो है. हम छुप जाते हैं उसके पीछे. उसकी कितनी हाइट से क्रैश की थी? 150 feet we were told. But providentially it didn't. वो tarmac में जो helipad था, it fell short of that. It fell in a field. और इत्तेफाक से while coming down it missed power lines. और वहाँ पर खेत था. खेत में बहुत सारी मट्टी का वो किया हुआ. अल्लाह ताला ने बिछाई थी ताकि आपको चोट नहीं पहुँचे. आप क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल. But these things are fated. And you're lucky that you're still around after seeing that kind of an. And not just one. Working. Instances. That's nice. क्या बात है? But there was a premonition that something is going to happen. So I switched the camera on, and I got a shot of the crash. Till the point of impact. Wow. That is the cameraman's work. That is. Last was the point to function in whatever it was. Phenomenal. उसके बाद, I mean, there were other occasions to be on helicopter, but ठीक है, I dealt with it. सर आपने एक दो मुद्दे बहुत अच्छे बताए हैं सर. दैट माइट बी गुड फॉर द एसोसिएशन इफ आई मे टेक द लिबर्टी. इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस, institutional awareness, preparedness, and that is where the organization, your organization can help, no? Also in a fraternal sense, जैसे हम लोग आपस में भी हैं. Same, that's what I mean. Correct, sir. So Exactly. institution, organization level पे तो organizations
being what they are. No, you're very right, fraternal. Especially in the COVID phase, the whatever, the exploitative slash, I don't know, what is the word for it? The reductive sort of Exploitative versus? case of organizations. That way. Oh, that way. Yeah, So right. in that sense, so who has the time to deal with namby-pamby things like post-traumatic stress? I still have images. I mean, okay, Firozabad train massacre, not massacre, that disaster. नहीं, बट भाई साहब उसी कारण ना, भाई साहब उसी कारण, हाँ बैठो सर, उसी कारण जो मैं पहले भी बार कहा है, एक बार फिर कहूँगा, संस्थान या सरकारी सिस्टम से जितनी उम्मीद की जाए ठीक है, जितना हो जाए अच्छी बात है, जो अनौपचारिक रूप से हो वो बेहतर है, अपने आप से हो, अपनी फ्रेटर्निटी में हो, अपने कॉलीग्स के साथ हो. इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल मैकेनिज्म्स फॉर शेयरिंग एंड आउटलेट. एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा भाई साहब, बाकी सबके जो बहुत बारी हुई, आउटलेट्स चाहिए. मतलब आप जो कह रहे हो कि एक जमा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा जमा हो गया, वो जमा ना होने दे. द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इज सप्रेशन. क्यूमुलेटिव सप्रेशन इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. अगेन हम इनफॉर्मली जो बात कर रहे थे, थोड़ा और गौर करिएगा, खासकर जो हम 40-45 के ऊपर के हैं और अगर फील्ड में काम कर रहे हैं, अक्सर ये रियलाइजेशन नहीं होती है कि ट्रॉमा और स्ट्रेस का मानसिक असर हो या ना हो, फिजिकल हेल्थ पे बहुत असर होता है. Stroke, heart attack, diabetes will happen because of that suppressed trauma and the stress. So the ventilation and the are registered. Yeah. पीछे भी उन्होंने भी वही कहा, उन्होंने भी वही कहा. हाँ, सबने. और कईयों के मन में है, सबके लेकिन फिर बोल नहीं पाते. और ये टाइम जो है, इसने भी इतनी मार दिया जन और खराब कर दिया, बहुत मारा है. And on the other side, the other people. सेकंड मुद्दा क्या था सर? You had a second point. सेकंड पॉइंट था वो जो नेचर ऑफ मेडिकल. हाँ सर, एक मिनट सर. हाँ नहीं, मुझे पल्लव जी ने अगेन गाड़ी में याद भी दिलाया था, मैं भूल गया सर. ये जो राय साहब कह रहे हो तो आई है, सॉरी. नहीं सर, हाँ लॉन्ग कोविड. You see, there are a lot of terms, लॉन्ग कोविड, ये वो. ये मैं आपको बताऊं, जैसे राय साहब ने बताया, लास्ट अप्रैल आई ऑल्सो हैड ए कोविड इन्फेक्शन. मैं 2 हफ्ते अपने घर रहा मस्ती से. I had for a few months, but more than that, personal experience, I see a lot of patients on my own and I speak to my doctor colleagues where long COVID या post COVID कम से कम 6 महीने, 1 साल या शायद 2 साल तक चलेगा. इससे बिल्कुल परेशान मत होइए. एक सेकंड, उसके सिम्टम्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होंगे और ओवरलैप होंगे. लैक ऑफ एनर्जी है, इंक्लूडिंग इफ आई माइट टेक द लिबर्टी, वो जो पॉजिटिव थिंकिंग है, विल पावर है ना, विपरीत हालात से जूझने की, इंक्लूडिंग प्राइड ऑफ द प्रोफेशन, माइट वेल बी अ पोस्ट कोविड थिंग. A lot of individuals actually go through a lot of negative thinking and despondence. कोविड उसको नहीं आप ला देंगे कोविड पे, क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट है अपने आप में. नहीं, उससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ. कुछ सालों में पनपा है और रूथलेसली पनपा है. इसमें तो मेरा जीरो नॉलेज है और आप लोग कह रहे हैं कि पक्का है, इसमें कोई शक ही नहीं है. मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ सर कि अगर किसी हम में से 1-2 व्यक्ति को अगर वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अपने आप से ये सोचे कि हो सकता है मेरे केस में पोस्ट कोविड सिम्टम ना हो. जो लार्जर रियलिटी वो तो है ही है, इससे तो इनकार करने की जरूरत हो ही नहीं सकती है सर. लेकिन अगर आप में से किसी को ये लगे, मोस्टली इनमें से किसी भी पोस्ट कोविड सिम्टम का इलाज दवाइयों से नहीं है. इट्स ओनली हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गुड न्यूट्रिशन दैट विल वर्क. प्लीज अवॉइड मेडिकेशन अनलेस अ रिलायबल डॉक्टर टेल्स यू. यहाँ आपका सवाल था कि डॉक्टर्स भी बतरे मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड अ वैरायटी ऑफ एडवाइसेस. So you will have to choose 1 or 2 good agencies that you can depend on. लास्ट में ये कहूँगा, पोस्ट कोविड को साइंस भी अभी समझ ही रहा है. लाइक वी ऑल्सो 2020 में, 2021 में, वी ऑल वर लर्निंग. यू नो, वन थिंग दैट दिस एपिडेमिक डिड वॉज, पहले साइंस में क्या था कि लैग पीरियड जो था ना,
from research to application was long. मानव जाति ये सीख गई that lag period became almost zero. तो हम जो सीखते जा रहे हैं वही लागू कर रहे हैं. There it's a little difficult, but yes, you'll have to choose your doctor very well. और कई बार बहुत मुश्किल हो जाएगा, पोस्ट कोविड है या सिंड्रोमल डिप्रेशन है. सिंड्रोमल डिप्रेशन है तो दवाई से ठीक हो सकता है ना सर. तो वो मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू, आई एम नॉट हियर टू सेल साइकियाट्री, आई एम नॉट हियर टू से कि सभी लोग साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाओ. आई एम द लास्ट गाय टू डू दैट, यू नो. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. रघु एक मिनट. थैंक यू डॉक्टर सर. We are really thankful. अरे नहीं सर, नहीं सर. And a small token, आपकी एक फोटो रघु राय खोल के, प्लीज खोल के. क्या बात है पल्लव में आपकी फोटो. भाई ये तो We thought as a photographer, we should present you a picture of yours. बच्चन जी के हाथों से बच्चन जी की फिल्म मिल जाए. देखो जी, आप हमें जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो सुपरस्टार है. तो आप हैं, आपको नहीं पता है ना. हम आपको जैसे ये नहीं पता कि आप फिलोसोफर है. आपके कद काठी भी वैसे ही है. एग्जैक्टली, सब कुछ है. आप अपने आप को नहीं मानते, वो आपकी ह्यूमिलिटी. मैं कोई और. अरे वाह, एंड ब्यूटीफुल प्रिंट ऑल्सो. क्या बात है सर. आई नो. किसने बनाया भाई? वाह वाह, एंड वेरी नाइस प्रिंट. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर. हाँ, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर. Thank you, Dr. very much. सर